السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 25 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 152 ٹو 158۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اس قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے راستے میں استقامت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں ہی سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا ہے؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے اور اس میں علم والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو ایک علم والا ہے اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، تو ایک اندھیروں میں جو ایک شخص چلنے والا جو ایک لائٹ لے کے چلتا ہے، تو جو اندھیرا تاریکیاں بہت ساری ہوتی ہیں نا، پھر اس میں ایک جو شخص ہے وہ ایک لائٹ ایک ٹارچ لے کر چلتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں ہے، جو ایک نور لے کر چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی شخص کو علم عطا فرماتے ہیں، ہدایت اور علم اور نور عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ ان جیسا نہیں ہو سکتا کہ جو جاہل اور جو الٹریٹ لوگ تھے۔ تو جو علم والا ہوتا ہے، جو جسے قرآن اور سنت کا علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ علم والے کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ اور وہ جو لوگ جو علم نہیں حاصل کرتے ہیں قرآن اور سنت کا، حالانکہ اس نے سب کچھ علم حاصل کیا، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت بڑی بڑی اس نے ڈگریاں حاصل کی، لیکن اگر اسے قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے تو پھر وہ الٹریٹ ہے اور ایسا شخص مردہ کہا گیا ہے، جو مردہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسا شخص جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پہ غور فکر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو زندہ کہا گیا ہے اس آیت میں۔ جو پھر ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنا علم دیا، اس کو نور دیا، اس کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہ نور کو لے کر کے اکیلے نہیں اس کا فائدہ اٹھاتا، وہ لوگوں کو بھی اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو بہت خوبصورت آیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کریم کا نور لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، اور اس سب کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے شکر کرو اور میں میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، میں اسے یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ اور صحیح حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو نے اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں، یا یہ فرمایا کہ اس سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں دونوں بازو کے پھیلاؤں کی مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیاری سی حدیث ہے۔ تو اس سے خوشخبری ہے، جو لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نہ یاد کرے، نہ آپ کے پاس آئے۔ تو اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ آپ کو نہ یاد کرے، اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ کوئی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے
तो अल्लाह भी तन्हाई में याद करता है। अगर कोई इंसान अल्लाह को मजलिस में याद करता है, ज़िक्र करता है, याद करता है, तो अल्लाह तबारक तआला अपने बेहतरीन मजलिस में या फरिश्तों की मजलिस में उस शख्स को याद करते हैं। और फिर अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ एक बालिश आता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी तरफ एक बाजू उसकी तरफ आते हैं, है ना? और फिर अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ चल कर आता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी तरफ उसके पास दौड़ कर आते हैं, है ना? इससे बढ़कर मोहब्बत कहीं मिलेगी आप लोगों को? सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तो हमारा रब है। हमें इंसान से बड़ी तवक्को होती है। हम सारी ज़िंदगी लोगों के लिए, लोगों की याद में अपनी ज़िंदगियाँ फ़नाह कर देते हैं, लेकिन हकीकी मोहब्बत तो आपको अल्लाह से मिलेगी। अल्लाह से बढ़कर तो कोई है ही नहीं आपसे मोहब्बत करने वाला। हमारा रब हमारी हर चीज़ को जानता है, हमारी हर तकलीफ़, हमारे हर गम, हर परेशानियों को अल्लाह तबारक तआला जानने वाला है। और जब हम अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह भी हमें याद करता है। और देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है ज़िक्र करने का, कितना बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है अल्लाह को याद करने का। अल्लाह ताला आपको याद करते हैं। इंसानों के साथ जब हम मामला कितना भी कैसा भी करें, और जिस इंसान को हम याद करते हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि वो इंसान भी हमको याद करे। और कोई भी हम जिसको चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, हम ये भी चाहते हैं कि वो भी हमको याद करे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत दो तरफ़ा हो। और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि बदले में आपको वफ़ा मिले। और बाज़ वक़्त कोई शख़्स अपने वालिदैन को बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वालिदैन की औलादें बहुत सारी होती हैं, वो सबको याद करती हैं, एक ही शख़्स को नहीं याद कर सकती। फिर बाज़ वक़्त होता है कि कोई जो वालिदैन है किसी बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बदले में बच्चा क्या वाक़ई में अपने वालिदैन को उसी तरह से याद करता है? नहीं ना। हर तरह से, हर जगह अगर आप चेक करें और नज़र दौड़ाएँ, तो आपने तो सबसे बहुत कितने लोगों से मोहब्बत की होगी ना, लेकिन बदले में अक्सरियत में क्या मिलती है? वो चीज़ें वापस नहीं मिलती हैं। लेकिन आप देखें कि जैसे आम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये इंसान की एक फ़ितरी सी ख़्वाहिश होती है कि जिससे वो मोहब्बत करता है, वो जिसको चाहता है, वो भी उसको चाहे। जिसको वो याद करता है, वो भी उसको याद करे। जिसको वो मिस करता है, वो भी उसको मिस करे। ख़्वाह इंसान ज़बान से ही कहे या ना कहे, लेकिन इंसान की यही ख़्वाहिश होती है। लेकिन क्या इंसानों में से कोई इंसान ऐसा मिला कि आपको, जो ये सब कुछ करे, कि आपके लिए क्यों क्यों नहीं कर पाते? इंसान चाहने के बावजूद बाज़ औक़ात नहीं कर पाता है। हर इंसान से कभी ना कभी आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जिससे आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। जिसको याद करते हैं, तो वो आपको याद करने लगता है। जिसको आप याद करते हैं, वो फौरन आपको याद करेगा। तो फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा। इससे सच्ची और बात किसी की हो सकती है? इससे सच्ची बात किसी की और हो ही नहीं सकती है। अल्लाह ताला को जब आप याद करेंगे, तो अल्लाह आपको याद करेंगे। अल्लाह बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। यानी अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि तुम मुझे याद करोगे, तो मैं भी तुमको याद करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, जब तुम अकेले में मेरा जिक्र करते हो, तो मैं अकेले में तुम्हारा जिक्र करता रहूं, और जब तुम मजलिस में मेरा जिक्र करते हो, तो मैं तुम्हारा जिक्र उससे बेहतर मजलिस में जिक्र करता हूँ। तो यानी तुम्हारी मजलिस, यानी हम इंसानों की जो मजलिस होती है ना, सब गुनहगार होते हैं, सब के सब खताकार होते हैं, लेकिन अल्लाह की मजलिस में फरिश्तों की मजलिस होती है, जो सब नेक होते हैं और अल्लाह के मुकर्रब होते हैं और इंतहाई दर्जे के खैर ख्वाह होते हैं। तो इसलिए जब आप किसी इंसान को मिस करें ना, तो किसी इंसान की याद सताने लगे, तो क्या करना है? फौरन अल्लाह की याद करने लगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपके दिल को इत्मीनान से भर देगा। फिर आप इसमें देखेंगे कि याद करना, ज़िक्र करना सिर्फ ज़बान से ही नहीं है, दिल से भी करना है। अल्लाह की याद को दिल में भी याद करना है, ज़बान से भी करना है, तस्बीह पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाएँ, ये सब क्या चीज़ें? अल्लाह का ज़िक्र है। और ज़िक्र का एक और फ़ायदा भी है कि इंसान से शैतान दूर हो जाता है। जब एक बंदा मोमिन अल्लाह का ज़िक्र करने लगता है, तो उससे शैतान दूर भाग जाता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो, तो मैं भी क्या करूँगा? तुम्हें याद करूँगा। तो ज़िक्र एक बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। खूब ज़िक्र किया करें। अपनी ज़बान को खाली यूँ स्टॉप मत रखा करें, खूब चलाते रहें, चलते-फिरते, उठते, बैठते, खाते-पकाते अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। और सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र कौन-सा ज़िक्र है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। फिर सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ते रहें। फिर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये सब क्या है? सब अफ़ज़ल ज़िक्र में से आता है। चलते-फिरते, उठते, बैठते, सोते, लेटते, हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। क्योंकि जब अल्लाह को आप याद करेंगे, तो अल्लाह आपको याद करेगा। और अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला का ये फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ जब कोई आता है, तो अल्लाह ताला उसके पास दौड़ कर आता है। तो इसकी मिसाल आप सबके सामने है।
देखिए, आप सब ने कहीं न कहीं ये नियत की होगी कि हम अल्लाह का कुरान करीम समझें, अल्लाह के कलाम पाक को हम समझ कर पढ़ें। तो जब आपने ये नियत की ना, आप एक बालिश अल्लाह की तरफ आए, आपने एक बालिश अल्लाह की तरफ नियत की आने की, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपकी तरफ दौड़ कर आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद को समझाने के लिए एक बेहतरीन क्लास में जो है इंटर करवा दिया। आपने इसमें पा लिया ना, इसको जॉइन कर लिया और हिदायत का रास्ता आपको मिल गया। तो अल्लाह तबारक तआला बहुत गफूरुर रहीम है। अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा महबूब नहीं है, कोई सच्चा देने वाला नहीं है, कोई सच्चा ऐसा नहीं है जो बदले में आपको मोहब्बत दे। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत के बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह से मोहब्बत क्या है? ऐसी मोहब्बत जिसमें कभी भी कोई बेवफ़ाई नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा सच्ची है। आप सामने वाले को कितना मोहब्बत कर लें, बदले में वो भी कह दे कि हाँ, हाँ, हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन हालाँकि उसका दिल तो आपने नहीं देखा है, उसके दिल में क्या है आपको नहीं मालूम ना। आज छूटे, कल दूसरा दिन और फिर तीसरा, परसों किसी को उसने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर अल्लाह से एक बंदा मोमिन मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला सच्ची मोहब्बत करते हैं उससे और फिर इस मोहब्बत में कोई बेवफ़ाई नहीं है। फिर अल्लाह तबारक तआला उसके लिए हिदायत का भी इंतज़ाम कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। यानी अल्लाह ताला ने अपना शुक्र बजा लाने का हुक्म दिया और शुक्र अदा करने पर मजीद खैर और बरकत से नवाजने का भी वायदा फरमाया है। सूरह इब्राहिम आयत 7 में फरमाते हैं अल्लाह ताला, व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। यानी अल्लाह सुब्हान तआला से मोहब्बत करते रहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए और अल्लाह का शुक्र अता करते रहिए। अल्लाह का शुक्र खूब अदा करना है। अल्लाह का शुक्र करने से बहुत फायदे हैं। अल्लाह का शुक्र करने से बेइंतहा फायदे हैं। अल्लाह का अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और नियामतों में इजाफा होता है। और अल्लाह ताला यहाँ कुरान करीम में इस आयत में भी फरमा रहे हैं कि अगर तुमने शुक्र किया तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा देंगे। अगर हम ज़्यादा चाहते हैं, हर चीज़ों में इजाफा चाहते हैं, नियामतों में इजाफा चाहते हैं, खुशियों में इजाफा चाहते हैं, तो हमें बहुत शुक्रगुजार बनना है। और नाशुक्री करने की भी सज़ा भी बता दी है कि अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। इंसान अक्सर नाशुक्री जब करता है ना, जब वो एक दर पे, दो दर पे, चार दर पे रोना 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 रोता रहता है, तो ये नाशुक्री हो गई। और फिर नाशुक्री करने वालों को आपने देखा होगा, कभी भी वो खुश नहीं रहते हैं, वो परेशान रहते हैं और किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला रहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो नाशुक्री कर रहे होते हैं ना। शुक्रगुजारी तो यही है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो फिर अल्लाह तबारक तआला आपको उस मुसीबत से निकाल के बाहर ले आएंगे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन अजर व सवाब भी देंगे, साथ साथ आपके हालात भी बदल देंगे। लेकिन एक शख्स पे जो परेशानी मुसीबत आ गई तो फिर वो नाशुक्री कर रहा है, तो अल्लाह तबारक तआला उस पर बुरे से बुरे हालात डालते चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला यहाँ फरमा रहे हैं ना कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है नाशुक्री करने वालों के लिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपना ज़िक्र करने वाली ज़बान और शुक्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली ज़बान अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक तआला के हम सब दिल से, ज़बान से शुक्र और ज़िक्र करने वाले बन जाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, बेशक अल्लाह तबारक तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शुक्र और हुक्म देने के बाद अब सब्र के बारे में बयान फरमाया है और रहनुमाई फरमाई है। सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल की जाए, क्योंकि बंदा या तो हालत नियामत में होता है और उसका शुक्र अदा करता है, या फिर हालत आजमाइश में होता है तो फिर क्या करता है, वो सब्र नहीं करता है और वो नाशुक्री करता है। तो बता दिया कि आजमाइश दरअसल कब होती है, नियामतें ज़्यादा हैं और हालात बेहतर हैं, खुशियाँ हैं, तो भी क्या है, उसकी आजमाइश है कि वो कितना शुक्र अदा करता है, कितना अल्लाह की इताअत करता है। और अगर नियामत नहीं है, तंगी है, परेशानी है, कोई भी हालात हैं, इन आजमाइश में भी फिर वो क्या करता है, सब्र करता है, या वो नौहे करने लगता है, या चीख पुकार करता है, या सब तरफ जोर जोर से सीखना, चिल्लाना और हाय करना, ये सब करने लगता है। तो मोमिन का मामला भी बड़ा ही अजीब है। सही मुस्लिम में हदीस में आता है 2999 में कि मोमिन का मामला इंतहाई ताज्जुब की चीज़ है। अल्लाह ताला उसके मुतालिक जो भी फैसला फरमाए वो उसके हक में बेहतर होता है। अगर इसे खुशी की कोई बात नसीब होती है तो ये शुक्र बजा लाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना उसके लिए बेहतर साबित होता है। और अगर इसे रंज और गम की कोई बात पहुंचती है तो ये सब्र करता है और सब्र का मुजाहिरा करता है, और सब्र का मुज़ाहिरा करना भी उसके हक में बेहतर साबित होता है। यानी एक मोमिन जो होता है, एक अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लेने वाला जो एक शख्स जो मोमिन है, तो वो खुशियों में भी अजर समेटता है और परेशानी में भी जो है अजर अल्लाह का समेटता है।
खुशियों में अल्लाह की शुक्रगुजारी करता है और परेशानियों में सब्र करता है, तो इस पर भी वो अजर समेटता है। दोनों ही हाल में उसको अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मसाइब पर बर्दाश्त करने के सिलसिले में सबसे बेहतर मदद जिस चीज़ से ली जा सकती है, वो क्या है? वो सब्र है। सब्र और नमाज। सब्र और नमाज के ज़रिए से इंसान अल्लाह से मदद हासिल करे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए। हम सब से खिताब है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम किस चीज़ से मदद हासिल करो? पहली चीज़ सब्र है। सब्र करना है। सब्र ये है कि इंसान अपने आप को रोके रखे, थाम ले, बांध ले, और परेशानियों पर, मुसीबतों पर, कैसी भी आजमाइश हो, इंसान सब्र करे और नमाज कायम करे। मुस्नद अहमद 1319 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम की वजह से गम में मुब्तला होते तो नमाज शुरू फरमा देते थे। सब्र की यहाँ बात आ रही है, तो सब्र होते कितने तरह के हैं? तो सब्र की कई किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में हैं। पहला, हराम और गुनाह के कामों को तर्क करना सब्र है। दूसरा, इताअत और तकर्रुब इलाही के कामों को सर अंजाम देने में सब्र का मुजाहरा करना। फिर तीसरा, मुसीबत और मुश्किलात पर सब्र करना। ये हैं सब्र की 3 किस्में। तो जब इंसान गुनाहों को छोड़ता है ना, आप देखिए कि सारा माशरा जब गुनाह कर रहा है ना, तो एक अंदर से भी इंसान को, उसको भी दिल चाहता है कि हम भी जो है म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक हम भी सुने, या हम बिना पर्दे हम भी टहलें, और या फिर जो भी आज माशरे में हो रहा है हम भी करें। लेकिन एक बंदा मोमिन अपने आप को सब गुनाहों से रोके रखता है ना, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, अल्लाह की इताअत करता है। गुनाह छोड़ने पर जो उसको तकलीफ भी होती है ना, तकलीफ होती है, तो फिर क्या है? वो सब्र करता है। आप देखिए कि अगर फजर की नमाज तर्क कर देता है तो फिर क्या है? तो फिर वो गुनाहगार है। लेकिन अगर फजर की नमाज उसने अल्लाह की इताअत के लिए पढ़ने के लिए वो खड़ा हो गया, नरम और गर्म बिस्तर को छोड़ के वो ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह की इताअत के लिए फजर की नमाज में खड़ा हो गया ना, तो फिर क्या है? गुनाह को काम के छोड़ देना भी क्या है? ये तर्क करना है। तो ये भी क्या है? सब्र है। फिर अल्लाह की इताअत और तकर्रुब हासिल करने के लिए जो कामों को सर अंजाम देना, ये भी क्या है? सब्र है। जैसे कि आप सब माशाल्लाह से कुरान मजीद को समझ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, फिर अल्लाह का तकर्रुब हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए इंसान को चाहिए कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़े, तहज्जुद में उठकर अल्लाह के आगे अल्लाह का ज़िक्र करे, नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत करे। इन सब चीज़ों से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और भी जो अल्लाह के कुर्ब पाने की जो चीज़ें हैं, जो काम है, अच्छे-अच्छे अमल सालिहात करता रहे। तो फिर ये क्या है? ये सब कामों में इंसान को सब्र करना बहुत बड़ा ज़ख़ीरा चाहिए है। तहज्जुद आजकल देखिए आप कौन पढ़ पाता है ना, 3 बजे, 4 बजे, आजकल इतनी ठंड में कोई अपना बिस्तर छोड़ता है कि लोगों को फ़ज़ील ही नहीं हो पाती है, तो क्या तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? तो ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा कुर्बानी भी ज़रूरी होती है ना। तो फिर ऐसे शख्स जो अल्लाह की इताअत और कुर्ब पाने के लिए अपने ऐसे कामों को सर अंजाम देने में भी जो उसको सब्र करना पड़ता है ना, तो ये भी क्या है? सब्र है। फिर तीसरी जो कैटेगरी है, मसाइब और मुश्किलात पर सब्र। कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है? किसी की जान चली जाती है, और अपने अज़ीज़ और अपने प्यारे की, अपने करीबी रिश्तेदार जब दुनिया से चला जाता है, इससे बढ़ के कोई परेशानी नहीं, इससे बढ़ के कोई मुसीबत नहीं। तो फिर क्या करना है उसको? इस हालात में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में उसको सब्र करना है। आँसू पर तो देखिए कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन चीखना, चिल्लाना, सीना पीटना, हाय हाय करना, और खूब सर फोड़ना, दीवारों पे सर फोड़ना, और खूब चिल्ला-चिल्ला के रोना, तो ये सब मोमिन का काम नहीं है। एक मोमिन का काम क्या है? सब्र करता है, अपने आप को थामता है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि जिस हाल में अल्लाह रखे वो हाल अच्छा है, और फिर वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह आपका शुक्र है। और जिस जैसे जो ये फौत हुआ, एक तरफ एक दिन हम भी आपके पास लौट कर आने वाले हैं, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। तमाम तरह से ऐसे अल्फाज अदा करता है फिर, और नमाज़ पढ़ के फौतशुदा के लिए वो दुआएँ करता है, उसकी मग़फ़िरत की दुआएँ करता है। और देखिए मुसीबत पे, जब आपको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है, बहुत बड़ी नागहानी आ गई है, उस वक़्त अगर आपने दुआ कर ली, तो फिर वो दुआ जो है सीधे अर्श पे जाती है। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। और ख़ास करके जब कोई फ़ौत हो जाता है ना, उसके हक़ में खूब दुआ करें, तो वो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआएँ कबूल फरमाते हैं। वालिदैन फ़ौत हो जाएँ, भाई-बहन या बेटा या शौहर या बीवी, कोई भी फ़ौत होता है, तो क्या करना है हमें? सब्र करना है। सब्र का दामन थामना है, क्योंकि ये दुनिया क्या है? एक आर्ज़ी है, वक़्ती है, सबको एक दिन जाना है। सबको ये दुनिया छोड़नी है, कोई नहीं इस दुनिया में बैठा रहने वाला। कभी न कभी सब लोग जाएँगे, सब। और क्या करना है? अपनी तैयारी करना है। अपनी तैयारी करके सामने वाले की मग़फ़िरत और बख़्शिश की दुआ करके फिर अपनी भी तैयारी और अपनी फ़िक्र में लग जाना है कि हमें भी जब दुनिया से, अगर हमारा आज इनका वक़्त है, तो कल हमारा भी वक़्त हो सकता है। हमने क्या तैयारी की? हमने क्या कोशिश की? हमने कोई ऐसी अ, ख़ास तैयारी नहीं है मेरी। हमने तो कोई ऐसी तैयारी नहीं ना, अचानक से जो है पता चल रहा है कि ट्रेन लेट है, लेकिन और वो ट्रेन क्या होती है, एकदम से
वक़्त से पहले आ जाती है, तो फिर क्या होता है इंसान हड़बड़ा जाता है ना, उसकी तो कोई तैयारी नहीं होती है, तो फिर बंदा मोमिन लेकिन क्या होता है, चाहे जितना भी वो कोशिश कर ले, जितना भी वो जद्दोजहद कर ले, सारी ज़िंदगी वो इबादत कर ले, लेकिन कभी भी वो इंसान एक सैटिस्फाई नहीं होता कि हाँ, हमने अल्लाह की बहुत इबादत कर ली और हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं और हम कामयाब हैं। हमेशा वो यही चाहता है कि अभी तो मेरी कोई तैयारी नहीं हुई, हमें और इबादत करनी है, खूब हम इबादत कर लें। तो देखिए कि बस कोशिश करते रहें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और अच्छा गुमान रखें और अल्लाह के डर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो जो शख्स अल्लाह के डर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, मुसीबतों पे परेशानियों पे सब्र करेगा और अल्लाह का शुक्रगुजार बनेगा और तौहीद पर डटा रहे, जमा रहे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसे आखिरत में ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला की रज़ा ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो बंदा मोमिन का यही हाल है कि वो अल्लाह से अच्छा गुमान भी रखता है और अल्लाह से डरता भी बहुत है और अल्लाह से डर डर के ज़िंदगी गुजारता है। और जब उसको परेशानी मुसीबत आती है तो उस पर वो सब्र करता है, इस्तिकामत से काम लेता है। तो ये जो तीनों कैटेगरी आपके सामने रखी, 3 किस्में रखी, ये सब्र की किस्में हैं। जो शख्स सब्र की इन तीनों सूरतों को इख्तियार करेगा तो उसका शुमार उन सब्र करने वालों में से होगा जिन्हें अल्लाह सलाम कहेगा इंशाअल्लाह। आयत 154 वला तक़ूलूना लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला यशऊरून। और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें तो मुर्दा ना कहो बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम शऊर ही नहीं रखते। तो यहाँ पे शोधा की बरज़ख की ज़िंदगी के बारे में बताया है अल्लाह तबारक तआला ने, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि शोधा अपने बरज़ख की ज़िंदगी में जिंदा है और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। तो शोहदा शहीद से मुराद ये नहीं है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो फौत होने वाले वो शहीद मुराद नहीं है। यहाँ पे जिन शहीद की बात की जा रही है वो इस्लाम की खातिर जब ऐसी जंग हुई और अल्लाह का कलमा बुलंद करने के खातिर कुफ्र और ईमान के बीच जब जंग हुई तो एक ईमान वाला जब कुफ्र के खिलाफ अपनी तलवार उठाता है, उस जंग में अपनी तलवार उठाता है, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए वो अपनी तलवार जब उठाता है तो फिर अल्लाह की राह में उस जंग में ही अगर वो फौत हो जाता है तो वो शहीद होता है। तो वो लोग शहीद हैं जो कुफ्र और ईमान के बीच जब हक और बातिल की जंग होती है ना, जैसे जंग बदर हुई, जंग अहद हुई, और कभी भी हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन और वक्त और टाइम हो कि जब ईमान और अहले कुफ्र के बीच में जो जंग ऐसी होती है तो जो मोमिन इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह का जो है अल्लाह का नाम बुलंद हो और कुफ्र मिटा दिया जाए और जो खास हाकिम जो हाकिम या बादशाह होते हैं वो इस तरह से जंग हो रही हो ना, तो फिर वो कंडीशन में जब अगर वो कोई इंसान फौत होता है, कोई मोमिन फौत होता है तो फिर वो शहीद होता है। और शहीद शहीद के बारे में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि वो तुम उनके बारे में ये ना कहना कि वो मर चुके हैं, मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं। क्योंकि अक्सरियत क्या थी ना, जो जंग होती थी और अक्सर जंग से लोग घबराते हैं क्योंकि जंग होगी तो हम मार दिए जाएंगे, हम तो फौत हो जाएंगे और हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे शहदा जो शहीद हो जाते हैं उनकी फजीलत बताई जा रही है कि अल्लाह तबारक तआला के यहाँ उनके कितने बुलंद दर्जात हैं, कितने आला मुकाम हैं और कितनी ज़्यादा उनकी फजीलत है। तो शहदा की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के जो दिलों में होती हैं और जन्नत में जहाँ से चाहती हैं खाती पीती हैं, फिर अर्श के नीचे लटकती हुई कंदीलों के पास आकर बैठ जाती हैं। और जब भी उनका परवरदिगार उनकी तरफ देखता है और फरमाता है क्या तुम कुछ चाहते हो, वो अर्ज करते हैं हम क्या चाहते हैं, जबकि हम तो जन्नत में जहाँ से चाहते हैं खाते पीते हैं। अल्लाह ताला शोहदाए से 3 दफा यही पूछते हैं। फिर जब शोहदा तसव्वुर करते हैं कि सवाल किए बगैर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा तो वो कहते हैं ए हमारे पालनहार, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि हम एक बार फिर तेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाएं। फिर जब बारी ताला देखता है कि शौदा को और किसी शय की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें वो छोड़ देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह तबारक ताला जो शहीद होके जाते हैं दुनिया से तो वो इस तरह से सब्ज रंग के परिंदों के दिलों में होती हैं और वो खाती हैं पीती हैं पूरी जन्नत में टहलते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला पूछते भी है कि तुम्हें कुछ और चाहिए है, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए, तो फिर वो ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ आगे रख देते हैं तो फिर अल्लाह ताला फिर उनको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको भी शहादत का दर्जा अता फरमाए। और आपको ये भी बताया था कि अगर कोई इंसान अपने आप को शहादत या शहीद होने की ख्वाहिश नहीं रखता ना तो उसके अंदर भी मुनाफिकत है। हर ईमान वाले को शहीद होने की या शहादत होने का अपने अंदर ख्वाहिश रखना चाहिए। और जब ख्वाहिश रखेंगे तो भले ही
اللہ ताला उसको बिस्तर पे ही उसके बिस्तर पे ही उसको मौत दे, लेकिन हो सकता है कि उसको शहादत का दर्जा अता फरमाए। तो हम सबको अपने दिलों में शहीद होने की ख्वाहिश रखनी चाहिए और ईमान और इस्लाम की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए हम सबको, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह मोमिन की रूह एक ऐसा परिंदा है जो जन्नत के दरख्तों से फल वगैरह खाता रहता है, हत्ता कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे उसके जिस्म में लौटा देगा। तो ये हदीस मुस्नद अहमद की है और इस बात की दलील भी है कि आम मोमिन भी बरज़ख में ज़िंदा हैं और उनको इज़्ज़त और शर्फ़ और तकरीम और तज़ीम के तौर पर कुरान करीम में शुहदा का बतौर ख़ास ज़िक्र किया गया है। यानी कि एक ख़ास और आम, यानी कि एक स्पेशल जो लोग होते हैं वो शहीद हुए, जो जंग की हालत में भी शहीद हो गए, लेकिन एक आम मोमिन भी अगर उसने अपने दिल में ख़्वाहिश रखी होगी कि हम शहीद हों अल्लाह की राह में और शहादत की उसकी ख्वाहिश होगी, तो फिर मोमिन है, ईमान वाला है, ईमान की हालत में फौत हुआ, तो फिर ऐसे लोगों की भी रूहें जो है सबसे परिंदों के जिस्म में होती हैं और जन्नत में जहाँ से चाहती हैं वो खाती हैं। और बस वही है ना कि ये सब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की गैब की खबरें हैं। जितना अल्लाह ने हमें बता दिया बस हमें उतना ले लेना है। अल्लाह के रसूल के ज़रिए से ये हदीसें अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको पहुँचा दी, हम सबको बता दिया, फरमा दिया, मालूमात हो गई। बस इसके पीछे अब नहीं लगना है। वो सब्ज़ परिंदे किस तरह के हैं, कैसे हैं, क्या है, अब उसकी गहराइयों में नहीं उतरने की कोशिश करनी है हमें। ये सब गैब की खबरें हैं और उसके तावीलों के पीछे हमें नहीं लगना है। बात दरअसल ये है कि जितना अल्लाह ने इल्म दिया है बस उतना हमें लेना है, उतना ही बस हमें ले लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। बस उसके अंदर बातों की तह तक नहीं जाना, क्योंकि दरअसल देखिए गैब की खबरें हैं ना, तो गैब अल्लाह ताला ने किसी को ज़्यादा बताया नहीं है। गैब का इल्म के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उतना बताया जितनी ज़रूरत थी। और बाकी सब कुछ अल्लाह ने गायब रखा है। आँखों से सब चीज़ ओझल है और जब इंसान देखिए, जब मौत होती है, मौत वाक़ई होती है, तो फिर वो सब कुछ खुद ब खुद जान जाएगा कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना? लेकिन हर मोमिन को अपने अंदर मौत की जो है शहादत की मौत की तमन्ना रखनी चाहिए कि अल्लाह हमको शहादत का दर्जा अता फ़रमाए। आयत 155 वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम तुम्हें किसी कदर खौफ और भूख से और मालों से और जानों और फलों में कमी करने से ज़रूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। मोमिन की आजमाइश पर सब्र से अजर मिलता है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि वो अपने बंदों का इम्तिहान और आजमाइश की कठिन मंजिलों से गुजारता रहता है। आप देखें कि एक जो गोल्ड होता है, वो गोल्ड जब पक्का होता है, जब उसको बहुत सारे हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है ना, तो फिर वो खिल कर बिल्कुल वाज़े होकर बिल्कुल प्योर गोल्ड हमारे सामने आ जाता है। तो एक मोमिन का जो मोमिन है उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं कि उसको ताप के और उसको जला के उसको बेहतरीन क्वालिटी का बनाकर उसको बेहतरीन परसेंटेज पे उसको बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड की तौर पे उसको ले आते हैं। एक मोमिन को जांचा पड़ताला जाता है और उसको जांच कर और उसको बेहतरीन निखार कर उसको सोने की तरह खरा बना दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बताया है कि मोमिन बंदों की आजमाइश होगी। तो जब तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारी ज़रूर आजमाइश होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम कि हम तुमको ज़रूर आजमाएँगे। आजमाइश आएगी, कभी भी आजमाइशों से मत घबराएँ। आजमाइश दरअसल क्या है, सब्र कर लेंगे तो आखिरत में दर्जात की बुलंदी होगी और दुनिया में भी दर्जात की बुलंदी होगी। हर इंसान पर आजमाइश आती है। आपको पता है कि जब आप कुरान और सुन्नत से जुड़ेंगे तो ख़ास करके इस रास्ते में आपको बहुत आज़माया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपके आगे फूलों का रास्ता बना दिया जाए, आपको सब लोग कहें आइए आपका वेलकम है। बहुत से लोग आपको आपको मज़ाक बनाएँगे, आपका जो है आपको बातें करेंगे, आपको तंज करेंगे, सब कुछ कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। और यहाँ बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वलनबलुवन्नकुम कि हम तुमको ज़रूर आज़माएँगे किसी न किसी चीज़ से, मिनल खौफ़ी खौफ से, भूख से और नुकसान से, माल से, जान से और फलों के नुकसान से। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बता दी हैं कि हम तुमको ज़रूर आज़माएँगे। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31 में आता है कि हम तुम लोगों को आज़माएँगे ताकि तुम जो लड़ाई करने वाले हैं और साबित कदम में रहने वाले हैं, उनको हम जाँच लें, जाँच पड़ताल कर लें, उनको हम मालूम कर लें कि तुम्हारे में बेहतरीन कौन है। अल्लाह ताला कभी खुशी और मुसर्रत फराहम करके आज़माते हैं और कभी भूख और रंज देकर भी आज़माते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला आज़माइशों से गुज़ारते हैं ताकि जान ले कि इसमें कौन खरा है और कौन खोटा है। कौन खोटा सिक्का है, कौन खरा सिक्का है, कौन प्योर है 24 कैरेट गोल्ड है और कौन पीतल है ना, इसीलिए आज़माया जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, बिशैइन मिनल खौफ़ी हम तुमको आज़माएँगे खौफ से, यानी किस कदर खौफ है ना, खौफ से आज़माएँगे। तुम्हें डर होगा, तुम डरोगे, तुम परेशान होगे, तुम्हें किस-किस चीज़ों का खौफ होगा ना, खौफ से भी तुम्हें आज़माया जाएगा। फिर
तुम्हें आजमाया जाएगा भूख से, और तुम्हें भूख से भी आजमाया जाएगा, वनक्सिम मिनल अमवाली, और तुम्हें मालों के नुकसान से आजमाया जाएगा, वल अनफुसी, और तुम्हें जानों के नुकसान से, और के दोस्ती और रिश्तेदारों, और तमाम जो जानों का नुकसान होता है ना, इससे मुराद ये कि आपका कोई अजीज करीब दुनिया से रुखसत हो जाए, और वह समराती फलों के नुकसानात से, यानी बाग खेत और जो है गल्ला किसानी वगैरह इन सब के नुकसानात से। तो ये तमाम तरह की कैटेगरी है अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दी है। तो इंसान इन इन चीज़ों से आज़माया जाएगा। खौफ से, दुश्मन का खौफ होगा, आपके कोई ऐसे खौफ, तो आपको आज़माया जा रहा है। उस खौफ की हालत में आपको क्या करना है? तौहीद नहीं छोड़ना है, एक अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ना है। कैसा भी डर हो, दुश्मनों का खौफ हो और कैसे भी लोगों का डर हो। आप देखिए कि फ़िरौन से बढ़ के तो कोई नहीं ना, ज़ालिम बादशाह या नमरूद से बढ़कर कोई नहीं ज़ालिम बादशाह, कैसा भी कोई ज़ालिम बादशाह, कोई ज़ालिम हुक्मरान, कोई भी हो, किसी का भी खौफ हो, हर हाल में सिर्फ़ अल्लाह का दामन थामें, अल्लाह की तौहीद पर डट जाएँ। अपने दीन को मत छोड़ें, अपने दीन को पकड़ के थाम के रखें। और भूख जब इंसान अल्लाह की राह में निकलता है, उसको भूखा प्यासे भी रहना पड़ता है। आप देखिए कि हज का सफ़र कैसा सफ़र है, इसमें इंसान को मशक्कत है, भूख है, प्यास है, सब उठाना पड़ता है। फिर जब अल्लाह की राह में इंसान तबलीग करने निकलता है, तो हमेशा ये नहीं होता कि उसके लिए खाने की बहुत सारी वैरायटी लगी है ना, उसको बहुत जगह पे भूखा भी रहना पड़ता है। तो सब्र करना है। हो सकता है घर के अंदर भी हलाल कमाई जब लाने की इंसान नियत कर लेता है, तो कभी-कभी ये भी होता है कि बहुत से लोग भूख भी बर्दाश्त करते हैं ना, क्योंकि उनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, क्योंकि हराम का लुक़मा उसे लेना पसंद नहीं, हलाल हलाल ही वो खाएगा। तो फिर इस हलाल और हराम की, अल्लाह के अहकामात के डर की वजह से वो लोग गलत कामों की तरफ भी नहीं जाते। हो सकता है उन्हें भूख की आजमाइश से भी गुजरना पड़े ना, तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि हम तुमको भूख से भी आजमाएंगे, वनक्सी मिनल अमवाले, और तुम्हारे मालों के नुकसान से भी आजमाएंगे ना। बिजनेस लॉस या जॉब चली गई या किसी भी तरह का कोई भी जो आपका कारोबार का मसला था, वो क्या हो गया, लॉसेस, माल का लॉस है ना, हर चीज का लॉस हो गया, जो जराए थे आपकी आमदनी के उसमें लॉस हो गया। अब क्या है, ये समझ लीजिए आजमाइश है। वरना अनफुसिवस, और तुम्हारी जानों के नुकसान से, हमारी जानें यानी हम हो सकता है आजमाए जा रहे हो, हम किसी दर्द, परेशानी, मुसीबत, बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, या फिर हमारे अजीज अकारब और रिश्तेदार वो किसी परेशानी में और मुसीबत या मौत में मुब्तला, तो फिर इस तरह से इंसान को आजमाया जाता है। और फलों के नुकसान से, ये सब क्या है, आजमाइश की कैटेगरी है। लेकिन एक हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी ये आज़माइश है या ये मुसीबत है? देखिए, मोमिन के लिए क्या है, आज़माइश होती है तो फिर वो अल्लाह की तरफ लौटता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो ये आज़माइश होती है। लेकिन काफ़िरों पर भी परेशानी मुसीबत आती है, तो जब काफ़िरों पे मुसीबत परेशानी होती है तो फिर वो अल्लाह से दूर ही हो जाता है, अल्लाह की नाफ़रमानी करता है और अल्लाह के साथ कुफ़्र के कलाम भी बोलने लगता है। तो एक मोमिन क्या है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, हर हाल में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में अल्लाह की तरफ रग़बत करता है, अल्लाह की तरफ लौटता है, पलटता है। वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, खुशखबरियाँ सुना दो, बशारत सुना दो। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया कि जो सब्र करने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। जो सब्र करेंगे, जो आज़माइशों में सब्र करेंगे, सब्र को थामे रखेंगे, तो उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। क्या चीज़ की खुशखबरी है? किस चीज़ की खुशखबरी है? जन्नत की, अल्लाह की रज़ामंदी की खुशखबरी है। आयत 156, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो लोग जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है, तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम बेशक उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं कि साबिर कौन है, जिनकी अल्लाह ताला ने यहाँ तारीफ़ की है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है, तो वो ये कहते हैं, हम अल्लाह ही के हैं, हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी उन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचती है, इन जो तमाम मुसीबत बताई है आयत नंबर 155 में, उनमें से कोई भी मुसीबत पहुँचती है तो वो यही कहते हैं। यानी उन्हें जब भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत पहुँचती है, तो वो अपनी इस बात के साथ-साथ यही बात कहते हैं, मुसीबत पहुँचती है तो वो अपनी उस बात के साथ तसल्ली हासिल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अल्लाह ही का माल है और वो अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में जो चाहता है, तसर्रुफ़ फरमाता है, और वो उस हकीकत से भी खूब आगाह है कि ज़र्रा बराबर किसी चीज़ में रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाया नहीं होगा। तो ऐसे लोग क्या हैं? अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं। जब उनको मुसीबत पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है, तो वो कहते हैं, हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। सख्त मुसीबत और परेशानी के वक़्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। इसकी बहुत फ़ज़ीलत है। मुसीबत के वक़्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की बहुत फ़ज़ीलत है। यानी हमारे क्या कोई भी कभी कोई ऐसे लॉसेस होते हैं ना, कभी दूध बॉयल हो गया या कोई लाइट चली गई या कोई परेशानी हो गई या कोई ऐसा हादसा हो गया जो दिल पर तकलीफ़ पहुँची। कोई भी ऐसा मामलात हुआ जिसकी वजह से दिल में तकलीफ पहुंची, तो इस जब तकलीफ हो तो हम यही अल्फाज कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त पढ़ने से
इसके सवाब के बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करती हैं कि एक दिन मेरे शौहर अबू सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी बात सुनी है जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है, और वो ये है, जब भी किसी मुसलमान को कोई भी मुसीबत पहुंचे, वो इस मुसीबत के वक्त कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, और वो ये दुआ करे, ए हमारे अल्लाह, इस मुसीबत में मुझे अज्र दे और मुझे अज्र का बेहतरीन अदल बदल अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला उसके साथ उसी तरह का मामला करता है। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने आपसे सुनकर ये दुआ याद कर ली, और जब अबू सलमा यानी उनके शौहर ही फौत हो गए, तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और इस दुआ को भी फिर दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर शौहर किस तरह मिल सकता है मुझे। जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अंदर आने की तशरीफ की इजाज़त की तलब की। मैंने इस वक्त एक खाल रंग रही थी, तो मैंने अपने हाथों से दरख्त से के पत्तों से अपने हाथों को साफ कर लिया और आपको इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आ गए और आपकी खिदमत में एक तकिया पेश किया जो खाल से बना हुआ था और खजूरों के दरख्त के रेशों से भरा हुआ था। आप उस पर जलवा अफरोज हुए और आपने मुझसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। आप जब अपनी बात इरशाद फरमा चुके, तो मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए तो बहुत सआदत की बात है, लेकिन मैं तो एक बहुत ज़्यादा गैरत वाली और बहुत बेवा हो चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात सरज़द हो जाए कि जिससे की वजह से अल्लाह ताला मुझसे अज़ाब में मुब्तला कर दे। और दूसरी बात ये कि मैं एक ऐसी उम्र रसीदा और बच्चे वाली औरत हूँ, यानी कि वो ये डर रही थी कि अल्लाह के रसूल से मेरा निकाह हो जाएगा। मैं तो एक बहुत ज़्यादा बेवा भी हूँ और मुझे बहुत शर्म भी आती है, और मैं बच्चे वाली भी हूँ, और ऐसा ना हो कहीं मुझसे अल्लाह के रसूल के से कोई ऐसी बात हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुमने जो बेवगी यानी ग्यारत की बात की है, तो इससे अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है, तो मैंने तुम्हारी तरह उम्र रसीदा हूँ, और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। कहती हैं, ये इरशाद सुनकर मैंने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी फरमाई। फिर उम्मे सलमा रज़ी ताला कहा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे वाक़ई अबू सलमा से बेहतर शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। ये मुस्नद अहमद की हदीस में से है। देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के पढ़ने का फ़ायदा और फ़ज़ीलत है ना। अक्सर हम समझते हैं कि ये आयत तो बस हमें जब किसी की फ़ौतगी हो तभी पढ़ना है, जबकि जब भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा कंडीशन हो जब आपके दिल को धक्का लगे, है ना? तब फ़ौरन ये दुआ पढ़ लें। कोई भी नुकसान हो, आप ये दुआ पढ़ लें। ये दुआ अपनी ज़बान पे जारी कर लें। तो फिर क्या होगा? उससे अफ़ज़ल चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। आयत 157 देख लें। व उलाइका आयत 157 उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब की तरफ से बख्शिश और रहमत है, और यही हिदायत याफ्ता हैं। यानी जब इंसान सब्र करेगा, तो अल्लाह तबारक ताला का उनके ऊपर बख्शिश है, रहमत है, और अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत का इंतज़ाम फरमाएगा। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम, यानी यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, यानी अल्लाह की तरफ से उनके लिए सना है और रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। तो जब इंसान अल्लाह की बात पर और अल्लाह की हर फैसले पर वो राज़ी होता है, हर आज़माइश में वो सब्र करता है और मुसीबतों पे सब्र करता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार होता है, कोई भी शिकवा नहीं, कोई भी शिकायत नहीं, अल्लाह के हर फैसले में वो राज़ी रहता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसको क्या कर देते हैं? उसके ऊपर सलावात है, रहमत है और हिदायत है, और यही लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। आयत देखें, आयत नंबर 158 है। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है, लिहाजा जो भी शख्स बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे, तो उसके लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि वो उनके दरमियान चक्कर लगाए। और जो शख्स खुशी से करे कोई भलाई का काम, तो अल्लाह ताला यकीनन कदरदानी करने वाला है। तो जब कोई उम्रा करता है या हज करता है, तो फिर सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ता है, और इस दौड़ने को सही कहा जाता है। सफ़ा मरवा दरअसल ये दोनों पहाड़ अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। इनकी सही करना, यानी सही का मतलब क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ना। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा तक दौड़ने को सही कहा जाता है। तो ये अल्लाह ताला की इबादत में शामिल है। इस आयत का नुज़ूल उस वक़्त हुआ जब कुछ सहाबा को ये शक हुआ कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना सही है या नहीं है। इसकी वजह से, दरअसल वजह ये थी कि ज़माने जाहिलियत के दौर में कुरैश ने यहाँ पर 2 बुत रखे हुए थे, इसाफ और नाइला।
लोग उन बुतों के पास जाकर उनसे बरकतें मांगते थे। जब इस्लाम आया तो कुछ मुसलमान ये सोचने लगे कि कहीं सही करना गुनाह तो नहीं है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने उनके इस वहम को दूर कर दिया। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि सफ़ा और मरवा तो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इनकी सही करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये तो इबादत का हिस्सा है। तो फमन हज्जल बैत अई तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा। तो जो कोई हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही करे। इसका मतलब ये नहीं है कि सही करना इख्तियारी यानी ऑप्शनल है, बल्कि ये वाजिब है, ज़रूरी अमल है। या फला जुनाहा कोई गुनाह नहीं इसलिए कहा गया ताकि पहले से मौजूद शक को दूर किया जाए। सफ़ा मरवा अल्लाह ताला की निशानियां हैं, उनकी सही करना हज और उम्रे का हिस्सा है। वमन यतौ वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और जो कोई शख्स खुशी से करे कोई भलाई तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है और सब कुछ जानने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सही के अलावा कोई नेक अमल करे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करेंगे, उसका बदला देंगे। सफ़ा और मरवा मस्जिद हराम के करीब दो पहाड़ियां हैं जिनके दौरान दौड़ना सही करना मनासिक हज में से है। अल्लाह ताला ने हज के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिखाया था। बाद में जब मक्का और उसके आसपास के तमाम इलाकों में मुशरिकाना जाहिलियत फैल गई तो सफ़ा पर इसाफ और मरवा पर नाइला के आस्थाने बना लिए गए। उनके इर्द गिर्द तवाफ भी होने लगे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस्लाम की रोशनी अहले अरब तक पहुंची तो मुसलमानों के दिलों में ये सवाल खटकने लगा, आया सफ़ा मरवा की सही हज के असली मनासिक में से है या महज हम जमानाए शिरक की इजाद है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं हम मुशरिकाना जो रसूम है उसकी हम इत्तिबा तो नहीं कर रहे हैं। तो मोमिनों के दिल में, ईमान वालों के दिलों में सफ़ा मरवा की सही करना खटकने लगा और वो डरने लगे कि कहीं हम ऐसा तो नहीं हम इन बुतों के जो है आस्थाने हैं और जो उन पे बना लिए गए थे सफ़ा पहाड़ी पर और मरवा पहाड़ी पर, कहीं हम उनकी पीछे तो नहीं सही कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर उन सब की जो है शकूक को दूर कर दिया। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। ये तो अल्लाह की निशानी है। शाइरिल्लाह जो अल्फाज आया है, शाइर जिसके माने हैं अलामातें हैं, यहाँ हज के वो मनासिक मुराद है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना हज का एक रुकन है। सफ़ा हरम शरीफ के दाहिनी जानिब है और मरवा बाएं जानिब है। दोनों के दरमियान फासला 493 कदम का है या तकरीबन 7 फरलांग का है। सफ़ा के लुग़वी माने हैं साफ पत्थर या खालिश चट्टान के हैं और मरवा के भी लफ्जी माने सफ़ेद और नरम पत्थर के हैं। ज़माना जाहिलियत में इन दोनों पहाड़ों पर अहले मक्का ने बुत नस्ब कर लिए थे जिनकी परस्तिश की जाती थी और सही के दरमियान लोग उनको छूते भी थे। इसलिए मुसलमानों को उन पहाड़ों की सही से कराहत महसूस हुई। हालांकि सही का मकसद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना था और ये शायर तौहीद में था, ना कि शायर शिरक में से। इसी पस मंजर में कुरान करीम ने कहा है कि चूंकि ये एक ईमान अफरोज वाकया की यादगार है, ना कि मुशरिकाना अमल की, इसलिए सही करने की कोई कराहत महसूस ना करनी चाहिए। सफ़ा और मरवा खास करके ये उस वाक़ये की याद दिलाता है जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ा था और उस वक्त यहाँ पानी का एक कतरा भी मैसर नहीं था। मशकीज़े में जो थोड़ा पानी था ना वो भी ख़त्म हो गया था। सही बुखारी हदीस 3365 में आता है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो कुछ होना था वो हुआ तो आप इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। उनके साथ एक मशकीज़ा था जिसमें पानी था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा इस मशकीज़े का पानी पीती रहीं और अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती रहीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे तो उन्हें एक बड़े दरख्त के पास ठहराकर घर वापस जाने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा उनके पीछे पीछे आई। जब मुकामे किदा पर पहुंची तो उन्होंने पीछे से आवाज दी, ए इब्राहिम, हमें किसके पास छोड़कर जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, रदियतु बिल्लाही, फिर मैं अल्लाह से राजी हूँ। बयान किया कि फिर हजरत हाजरा अपनी जगह पर वापस चली आईं और उसी मशकीज़े से पानी पीती रहीं और अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती रहीं। आप देखिए सोचिए जरा कि कितना अंधेरा और सन्नाटे और बियाबान जंगल में हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके शौहर ने छोड़ दिया और उन्होंने कोई भी सवालात नहीं किए, कोई भी झगड़ा नहीं की, कोई भी लड़ाई नहीं की और उन्होंने क्या अल्फाज कहे, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो रज़ियतु बिल्लाहि रब्बम, कि मैं अल्लाह के फैसले से राजी हूँ।
वहाँ कुछ भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा भी नहीं किया और बस अल्लाह के फैसले में राज़ी हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पानी ख़त्म हो गया और बच्चा भूख और प्यास से तड़पने लगा, तो सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी पानी की तलाश करते हुए, क्योंकि ऊंची जगह से देखना चाहती थी कि शायद आसपास कोई पानी की जगह हो कि बच्चे के लिए पानी ले आए। सोचिए, किसी वक्त कि मसलन कोई आपको रात के वक्त किसी पार्क में छोटे बच्चे को साथ तन्हा छोड़ दे, कैसा रिएक्ट करेंगे ना? आप चीख मारेंगे, रोना धोना करके भाग निकलेंगे। लेकिन हजरत हाजरा को पता था कि मेरे शौहर अल्लाह के दोस्त हैं और वो अल्लाह की मर्जी, हुक्म और फैसले के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। हर शख्स इस बात का एक्सपीरियंस करता है कि बाज़ मुश्किलात ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसान हजरत हाजरा की तरह तो नहीं, लेकिन उनसे कम दर्जे में तनहा छोड़ दिया जाता है। कोई भी तनहा हो नहीं होता, तो क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? बाज़ औक़ात अपने प्यारे दुनिया से चले जाते हैं, एक के बाद एक फौत हो जाता है। मसलन कोई आकर मुझे कहता है कि मेरी वालिदा की डेथ हो गई, फिर मेरे शौहर की डेथ हो गई, फिर मेरा एक बच्चा था, उसकी भी डेथ हो गई। जब आप किसी का भी ऐसा वाकया या किस्सा सुनते हैं, तो आप पर क्या गुजरती है? या रब, ये बंदा जी कैसे रहा है ना? उसके सारे प्यारे और उसको छोड़ के चले गए, और बाज़ औक़ात प्यारे दुनिया में होते हैं फिर भी छोड़ जाते हैं। हर शख्स किसी ना किसी तरह एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ होगा। वो चीज़ वो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है ना, वो चीज़ उसको छोड़ के चली जाती है। तो ऐसे वक्त में, ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या कहना चाहिए कि रदियतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं अल्लाह के फैसले में राजी हूँ। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। अगर कोई मेरा नुक्ता नज़र नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, मेरा रब तो जानता है ना कि मैं सच बोल रही हूँ। मेरा रब तो जानता है ना कि जो कुछ मैं कह रही हूँ, कर रही हूँ, वो दुरुस्त है। इसलिए हज़रत हाजरा की ज़िंदगी भी एक बेहतरीन मिसाल है सब्र करने वालों के लिए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सीरत में हमारे लिए बहुत सारी इबरत है, बहुत सारी नसीहतें हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तलाशती रहीं, और उन्होंने कोशिशें की, जद्दोजहद की। उनको ये मालूम था ये बियाबान और ऐसी जो है बिल्कुल सुनसान वादी है, पानी का एक बूंद, एक कुआं, कुछ भी पानी का ज़राए नहीं है। फिर भी ऐसा सोच के वो एक किनारे बैठी ही नहीं रही, वो जद्दोजहद और जिहाद करती रही। पानी तलाश करने के लिए वो दौड़ लगाती रही, अपने बच्चे की प्यास मिटाने के लिए। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, ये इस तरह से कोशिश करना और इस तरह से दौड़ना मेरे रब को इतना पसंद आ गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह तबारक ताला ने बीबी हाजरा के इस दौड़ने के अमल को क़यामत तक के लिए, सारे हाजियों का दौड़ना, इसको एक मनासिक हज में बना दिया। इस सब के लिए दौड़ना वाजिब है। जब तक अगर कोई दौड़ नहीं लगाएगा, जब तक अगर कोई हाजी इसका सही सफ़ा मरवा की सही नहीं करेगा, तब तक उसका हज या उम्रा कंप्लीट ही नहीं हो सकेगा। अल्लाह तबारक ताला ने बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को इस कदर बुलंद अता फरमाई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तीनों ही अल्लाह के बेहतरीन बंदे, बेहतरीन बंदी। अल्लाह तबारक ताला ने उन सब के दर्जात की बुलंदी अता फरमाई। इन सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैता अवी तमरा, तो जो कोई उस घर का हज करे या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि, नहीं कोई गुनाह है उस पर, अन यत्तवफ़ बिहिमा, कि वो उन दोनों का तवाफ करे। और जो कोई खुशी से करे, वमन ततव्वा खैरन, तो जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा कदरदान है, बहुत जाने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह से बढ़कर कोई कदरदान नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई जानने वाला नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम का ये दौड़ना, ये सही, इसकी इतनी कदरदानी की क़यामत तक के लिए सारे जो ईमान वाले हैं, अम्बिया, पैगंबर, औलिया, सारे के सारे जितने भी अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले हैं, सब लोग उस सफ़ा मरवा के चक्कर लगाते हैं ना। अल्लाह तबारक ताला ने इतनी ज़्यादा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की कदरदानी की ना, उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए थे? रदियती बिल्लाहु, मैं अल्लाह के फैसले पे राजी, मैं अल्लाह के फैसले पे राजी। अगर ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का ये फैसला है, तो बेशक मैं इसके फैसले पे राजी हूँ। तो ज़िंदगी में जब भी कभी भी हमारे सामने जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, बस अल्लाह के फैसले में बस राजी हो जाना चाहिए। कभी भी अल्लाह के जो है फैसले पे हमें नाशुक्री और जो है नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन के रहे, बंदी बन के रहे, तो क्या होगा? फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत कदरदान है और खूब जानने वाले हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।